Welcome, students. So, today's lecture is in continuation of the previous lecture where we have already started the explanation of the short story A Cup of Tea, written by Catherine Mansfield. So, let us continue. A cup of tea. There was something simple, sincere in that voice. It was not in the least the voice of a beggar. So, now in these lines, Rosemary is replying to that poor girl who asked Rosemary to give her the price of a cup of tea. So, Rosemary is asking to that girl, a cup of tea. There was something simple, sincere in that voice. It wasn't in the least the voice of a beggar. So the girl who was asking for the price of a cup of tea, her voice was very simple and sincere. Sincere means true. That means she was telling the truth. She was not lying that she didn't have any money to purchase or to buy a cup of tea. Okay. It was not in the least the voice of a beggar. It was not at all the voice of a beggar. Beggar means भिखारी. उसकी जो आवाज़ थी वो भिखारी की आवाज़ जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी. It was very simple and sincere. Okay. Then you have no money at all? Rosemary was surprised. She asked that girl, then you have no money at all? Asked Rosemary. None, ma'am, came the answer. None means बिल्कुल भी नहीं, ma'am. How extraordinary. Extraordinary means unusual. Now she was surprised. Rosemary was surprised. She asked, how extraordinary. That means how unusual it is. Rosemary peered through the dusk. Peered means to, you can say, to look closely. Now Rosemary was looking very closely to that poor girl. बहुत ध्यान से उसको देख रही थी. Through the dusk. Dusk means शाम. Okay. And the girl gazed back at her. Gazed means to look steadily. टकटकी लगाकर देखना जिसे कहते हैं. She was like gazing at her. Rosemary peered through the dusk and the girl gazed back at her. Okay. How more than extraordinary. It was more than unusual. Okay. It was very unusual for Rosemary. And suddenly it seemed to Rosemary such an adventure. Now, suddenly it seemed to Rosemary. अचानक रोजमेरी को क्या लगा that this thing was like an adventure, कि ये तो बहुत ही adventurous है. It was like something out of a novel because this incident was just like something out of a novel written by Dostoevsky. So, this incident, her meeting with that poor girl, was just like an incident from the novel written by Dostoevsky. Who was Dostoevsky? He was a famous Russian novelist and short story writer. Okay. तो उसके साथ जो इंसिडेंट अभी हो रहा है, रोज़मेरी को वो बहुत एक्साइटिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि वो जो नॉवेल्स में पढ़ते हुए आई हैं कि किस तरह शाम के वक्त उसे एक गरीब लड़की मिलती है और उसे अपने घर ले आती है, तो ये उसको इसलिए एक्साइटिंग लग रहा है कि रियल लाइफ में उसके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हो रहा है. ओके. दिस मीटिंग इन द डस्क, सपोजिंग शी टुक द गर्ल होम, क्या हो अगर वो उस लड़की को अपने साथ घर ले आती है. तो ऑल दीज थिंग्स रोजमेरी वॉज इमेजिनिंग. ओके. शी सपोजिंग शी डिड वन ऑफ दोज थिंग्स शी वॉज ऑलवेज रीडिंग अबाउट और सीइंग ऑन द स्टेज. क्या हो कि वो सब चीज़ें जो आज तक वो पढ़ती आई हैं वो रियल लाइफ में हो उसके साथ. ओके. या फिर जो आज तक उसने स्टेज पर होते हुए देखा है वो उसके साथ रियल लाइफ में हो रहा है. वॉट वुड हैपन, तो क्या होगा. इट वुड बी थ्रिलिंग, सो इट वुड बी एक्साइटिंग, बहुत ही रोमांचक होगा. रोजमेरी वॉज थिंकिंग ऑल दीज थिंग्स. ओके. एंड शी हर्ड हर सेल्फ सेइंग आफ्टरवर्ड्स टू द अमेजमेंट ऑफ हर फ्रेंड्स, आई सिंपली टुक हर होम विद मी. वो ये भी साथ में इमेजिन कर रही हैं कि जब वो अपने दोस्तों को इस इंसिडेंट के बारे में बताएंगी तो उनका रिएक्शन कैसा होगा और वो किस तरीके से ये घटना उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगी. ठीक है. आई सिंपली टुक हर होम विद मी, वो उनसे शायद ये कहेंगी कि मैं सिंपली उसे अपने साथ अपने घर ले आई थी. एज शी स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड सैड टू दैट डिम पर्सन बिसाइड हर, कम होम टू टी विद मी.
नाउ रोजमेरी स्टेप्ड फॉरवर्ड, आगे बढ़ती हैं, एंड सेड टू दैट डिम पर्सन, डिम द एटमोसफियर इज डिम, ओके, क्योंकि द वेदर वॉज क्लाउडी। सो रोजमेरी आगे बढ़ती है और उस पुअर गर्ल से पूछती है, कम होम टू टी विद मी, मेरे साथ घर चलो चाय पीने के लिए, ओके। द गर्ल ड्रू बैक स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड मीन्स सरप्राइज्ड। नाउ द गर्ल वॉज वेरी सरप्राइज्ड, सो शी ड्रू बैक, वो पीछे हट जाती है। शी इवन स्टॉप्ड शिवरिंग फॉर अ मोमेंट, एंड शी वॉज दैट सरप्राइज्ड दैट शी स्टॉप्ड शिवरिंग फॉर अ मोमेंट, कि उसने कांपना भी कुछ देर के लिए बंद कर दिया। Rosemary put out a hand and touched her arm. I mean it. Now Rosemary put out a hand and touched the arm of the poor girl. Okay, and she says, I mean it. I really want to take you home. कि मैं ऐसा सच में चाहती हूँ. Okay. Smiling, हंसते हुए कहा. And she felt how simple and kind her smile was. Why won't you? तुम क्यों नहीं आओगी, तुम्हें आना चाहिए. डू प्लीज कम, ओके. कम होम विद मी नाउ इन माई कार एंड हैव टी. You don't mean it, ma'am, said the girl. So the poor girl was feeling really surprised that such a rich lady was asking her to have a cup of tea at her home. So she asked her, You don't mean it. आप सच में ऐसा नहीं चाहती हैं मैम, said the girl, and there was pain in her voice. Okay, but I do, cried Rosemary. I want you to please me, come along. So if you want to please me, so please come along, मेरे साथ चलो. The girl put her fingers to her lips and her eyes devoured Rosemary. Now girl put her fingers to her lips. जो पुअर गर्ल है उसने अपनी उंगलियां अपने लिप्स पर रख ली और हर आइज डिवॉर्ड रोजमेरी. डिवॉर्ड मीन्स शी वॉज लाइक स्टेयरिंग एट रोजमेरी इन एक्सट्रीम सरप्राइज. ओके, वो जो थी वो रोजमेरी को बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज के साथ घूर रही थी. सो शी डिवॉर्ड रोजमेरी विद हर आइज. ओके, यू आर नॉट टेकिंग मी टू द पुलिस स्टेशन. आप मुझे पुलिस स्टेशन तो नहीं लेकर जा रही हैं. She stammered. Stammered means हकलाना. Okay. Now she was terrified that कि वो जो रिच लेडी उसको अपने साथ घर चलने को कह रही है, कहीं वो उसको पुलिस स्टेशन तो नहीं लेकर जा रही है. द पुलिस स्टेशन. रोजमेरी laughed out. रोजमेरी हंसते हुए बोलती हैं, पुलिस स्टेशन. Why should I be so cruel? मैं इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हूँ. No, I only want you to make you warm and to hear anything you care to tell me. No, only I want to make you warm. मैं चाहती हूँ कि तुम घर चलो और इस कोल्ड वेदर की वजह से घर में रहकर चाय पियो और थोड़ा वार्म और कोजी फील करो. ओके, एंड टू हियर एनीथिंग यू केयर टू टेल मी. और उसके बाद जो भी तुम मुझे बताना चाहती हो या शेयर करना चाहती हो वो तुम शेयर कर सकती हो. हंग्री पीपल आर ईजीली लेड. हंग्री पीपल आर ईजीली कन्विंस्ड. आप भूखे लोगों को बहुत आराम से कन्विंस कर सकते हो. ओके, द फुटमैन हेल्ड द डोर ऑफ द कार ओपन एंड अ मोमेंट लेटर दे वर स्किमिंग थ्रू द डस्क. द फुटमैन मीन्स द सर्वेंट held the door of the car open for the ladies, and a moment later they were skimming through the dusk. Skimming means, you can say, moving lightly without appearing to touch the surface or the ground. ऐसा लग रहा था जैसे हवा में तैरते हुए वो कार मूव कर रही थी. The movement of the car was so smooth that it appeared as if it was skimming. मूविंग लाइटली, बहुत ही लाइटली मूव कर रही थी बिना सरफेस को टच करते हुए, ऐसा लग रहा था. थ्रू द डस्क. डस्क में शाम. देयर, सेड रोजमेरी. शी हैड अ फीलिंग ऑफ ट्रायम्फ एज शी स्लिप्ड हर हैंड थ्रू द वेलवेट स्ट्रैप. शी कुड हैव सेड, नाउ आई हैव गॉट यू, एज शी गेज्ड एट द लिटिल कैप्टिव. कैप्टिव मीन्स कैदी. शी हैड, कैप्टिव किसके लिए आया है? दैट पुअर गर्ल, फॉर दैट poor girl. Okay, she had netted means जाल बिछाकर पकड़ना. Okay, so here in these lines Rosemary was feeling triumphed. that means वो बहुत ही विजयी अनुभव कर रही थी. उससे लग रहा था कि
उस लिटिल गर्ल को कन्विंस करने के बाद उसने जीत हासिल कर ली है. ओके, शी कुड हैव सेड नाउ आई हैव गॉट यू, कि अब तुम मेरे यू कैन से जाल में आ गई हो या कन्विंस हो चुकी हो. शी गेज्ड एट द लिटिल कैप्टिव, उसने घूर कर किसको देखा? लिटिल कैप्टिव किसके लिए आया है? फॉर दैट पुअर गर्ल. ओके, शी हैड नेटेड, नेटेड मीन्स वैसे जाल बिछाना या फिर जाल में पकड़ना, बट ऑफ कोर्स शी meant it kindly. Oh, more than kindly. But Rosemary was very kind to that poor girl. She was going to prove to that girl that wonderful things did happen in life. Rosemary, wanted to, prove that girl that wonderful things do happen in our life. She wanted to prove to that girl that there are fairy godmothers in this world and fairy godmothers are real. यहाँ रोज़मेरी जो है वो उस लड़की के लिए ये प्रूव करना चाह रही हैं कि सच में दुनिया में अच्छी चीज़ें भी होती हैं और फरिश्ते भी होते हैं. फेरी गॉड मदर्स यानी जो एंजल्स होती हैं, उसको कन्विंस करने के लिए, उसको वो प्रूव करने के लिए रोज़मेरी ऐसा कर रही थी, उस लड़की को यकीन दिलाने के लिए कि सच में ऐसा होता है. दैट रिच पीपल हैड हर्ट्स, वो उसको ये भी प्रूव करना चाहती थी कि अमीर लोगों के भी दिल होते हैं. एंड दैट वुमेन वर सिस्टर, शी ऑल्सो वॉन्टेड टू प्रूव टू दैट पुअर गर्ल दैट वुमेन आर सिस्टर्स, कि जो लेडीज़ वुमेन होती हैं वो एक दूसरे के लिए सिस्टर्स होती हैं. ओके, शी टर्न्ड इम्पल्सिवली सेइंग डोंट बी फ्राइटन्ड. Now, she turned impulsively. Impulsively means you can say without forethoughts, यानी कि बिना पहले सोचे समझे वो अचानक से मुड़ती हैं. She turned impulsively, saying, "Don't be frightened. डरो नहीं. After all, why shouldn't you come back with me? We are both women." Now, Rosemary is saying कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए, हम दोनों ही महिलाएं हैं. If I am the more fortunate, you ought to expect from me, right? She says that if I am the more fortunate means you can say भाग्यशाली है, then you should expect from me. Okay? वो पुअर गर्ल को कह रही हैं कि मैं एक महिला होने के नाते तुम्हारी हेल्प करूँ तो तुम्हें ऐसा एक्सपेक्ट मुझसे करना भी चाहिए. But happily at that moment, for she didn't know how the sentence was going to end, the car stopped. इतना कहते ही रोज़मेरी के अचानक कार रुक जाती है, because they have reached their destination. Okay, the bell was rung, the doorbell was rung. Okay, the door opened, and with a charming, protecting, almost embracing moment, Rosemary drew the other into the hall, and with the protecting उसको सहारा देते हुए एंड एम्ब्रेसिंग यानी कि गले लगाते हुए, कुछ इस तरीके से रोज़मेरी दूसरी पुअर गर्ल को अपने साथ अंदर ले आती है. ड्रू द अदर किसके लिए आया है? फॉर दैट पुअर गर्ल. ओके, इन टू द हॉल, अपने साथ उसे हॉल में ले आती है. warmth, softness, light, a sweet scent, all those things so familiar to her, she never ever thought about them. She watched that other receive. So all the warmth in that house, all the softness of that of those carpets in the house, all the lights, the sweet scent in the house, so all these things were familiar to Rosemary. Okay, ये सभी चीज़ों से रोज़मेरी तो बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर थी क्योंकि वो उसी का घर था. She never ever thought about them. She just watched that other receive. वो सिर्फ उस दूसरे जो लड़की थी उसे देख रही थी कि वो इन सब चीज़ों को देखकर कैसा फील करती है. It was fascinating. ये बहुत ही fascinating था. That means it was extremely interesting. बहुत ही ज़्यादा beautiful लगता था. She was like the rich little girl in her nursery, with all the cupboards to open and all the boxes to unpack. रोज़मेरी जो थी वो कैसा फील कर रही थी? She was like the rich little girl in her nursery. जैसे कि वो किसी नर्सरी वो प्लेस होता है जहाँ पर बच्चों को
केयर के लिए छोड़ दिया जाता है जब पेरेंट्स अपनी वर्क पे जाते हैं या फिर किसी दूसरे रीज़न की वजह से बच्चों की देखभाल के लिए जहाँ बच्चों को छोड़ दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड नर्सरी. सो शी वॉज लाइक द रिच गर्ल. ऐसा फील हो रहा था जैसे जहाँ बच्चों की नर्सरी में वो किसी एक रिच लिटिल गर्ल की तरह फील कर रही थी, विद ऑल द कबर्ड्स टू ओपन एंड ऑल द बॉक्सेस टू अनपैक. जहाँ छोटे बच्चों में एक बहुत एक्साइटमेंट होती है ना नई चीज़ों को खोल कर दिखाने की और सबको शो ऑफ करने की. सो सिमिलरली रोजमेरी वॉज फीलिंग रियली एक्साइटेड. Come upstairs, said Rosemary, longing to begin to be generous. Now she wanted to be generous towards that poor girl. Generous means उदारता दिखाना. रोजमेरी जो थी वो उस पुअर गर्ल की तरफ अपनी जो जनरस क्वालिटी थी वो शो करना चाह रही थी. कम अप टू माई रूम. उसने उसको अपने रूम में इन्वाइट किया. And besides, she wanted to spare this poor little thing from being stared at by the servants. और दूसरा वो ये भी चाहती थी कि जो बाकी नौकर हैं वो जो उस पुअर गर्ल को स्टेयर कर रहे हैं, घूर कर देख रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये बहुत अजीब चीज़ थी ना. सो वो चाहती थी कि वो उस गर्ल को इस स्टेयरिंग से भी बचा ले, इसलिए उसने उसको अपने रूम में इन्वाइट किया. She decided as they mounted the stairs she would not even ring for Jenny but take off things by herself. तो उसने ये भी डिसाइड किया कि वो ऊपर जाने के बाद जेनी को भी नहीं बुलाएगी, जो कि शायद उसकी पर्सनल सर्वेंट थी, टू हेल्प हर टू टेक ऑफ थिंग्स. यानी कि अपनी चीज़ें, यानी कि कोट एंड हैट जो हटाने के लिए भी उसकी एक पर्सनल सर्वेंट थी. उसने डिसाइड किया कि वो उसको भी नहीं बुलाएगी. द ग्रेट थिंग वॉज टू बी नेचुरल. कि नेचुरल सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट थिंग्स जो होती हैं वो हमेशा नेचुरली ही होती हैं. एंड देयर cried Rosemary again as they reached her beautiful big bedroom with the curtains drawn. और वो वहाँ पर पहुँचने के बाद कहती हैं देयर cried Rosemary. रोजमेरी फिर से चिल्ला कर कहती हैं as they reached her beautiful bedroom with the curtains drawn. पर्दे लगे हुए हैं उसके बेडरूम में और वो उसके बेडरूम में पहुंच चुकी हैं. एंड द फायर लीपिंग ऑन हर वंडरफुल लेकर फर्नीचर. जो आग है वो बहुत ही तेज़ी से जल रही है. लीपिंग मीन्स छलांग होता है, बट यहाँ लपटें उठने को आप कह सकते हैं. सो देर वॉज अ फायर प्लेस इन हर बेडरूम. जो ठंडे देश होते हैं वहाँ पर जनरली हर बेडरूम में एक फायर प्लेस होता है जहाँ अंगीठी की तरह होता है, जहाँ पर वुड लॉग्स रखे जाते हैं, उनको बर्न करके टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है. ओके. सो द फायर लीपिंग ऑन हर वंडरफुल लेकर फर्नीचर. जो आग जल रही थी वो उसकी चमक किसमें आ रही थी? लेकर फर्नीचर यानी पॉलिश्ड और वार्निश्ड फर्नीचर. फर्नीचर के ऊपर जो पॉलिश की जाती है उसमें उसकी चमक दिख रही थी. हर गोल्ड कुशंस एंड द प्रिम रोज एंड ब्लू रग्स. और साथ ही साथ वहाँ पे गोल्ड कुशंस थे एंड द प्रिम रोज एंड ब्लू रग्स. प्रिम रोज एक हल्का पीला कलर होता है. एंड ब्लू रग्स, और देयर वर ब्लू रग्स इन हर bedroom. Rugs means carpets. The girl stood just inside the door. She seemed dazed. यहाँ पर पहुँचने के बाद जो लड़की थी वो बहुत ही सरप्राइज्ड फील कर रही थी. बट रोजमेरी डिडंट माइंड दैट. उसको उसकी परवाह नहीं थी कि वो लड़की कैसा फील कर रही है. कम एंड सिट डाउन, शी क्राइड, ड्रैगिंग हर बिग चेयर अप टू द फायर. अब उसने उस लड़की से कहा कि कम एंड सिट डाउन. क्राइड, ड्रैगिंग हर बिग चेयर. ड्रैगिंग यानी घसीटते हुए अपनी बड़ी सी चेयर को उस फायर प्लेस के पास ले आती हैं. इन दिस कम्फी चेयर, कम्फी मीन्स कंफर्टेबल चेयर. कम एंड गेट वार्म. यहाँ आओ और आग के पास बैठकर थोड़ा वार्म फील करो. यू लुक सो ड्रेडफुली कोल्ड. यू आर लुकिंग वेरी बैडली कोल्ड. बहुत ज़्यादा तुम कोल्ड लग रही हो. आई डेयर नॉट मैम. डेयर मीन्स हिम्मत करना. सेड द गर्ल एंड शी एज्ड बैकवर्ड्स. एज्ड मीन्स शी विड्रो हेजिटेटिंगली. बहुत ही हिचकिचाते हुए वो पीछे हट गई.
ओह प्लीज़ रोज़मेरी रैन फॉरवर्ड, यू मस्ट नॉट बी फ्राइटन, यू मस्ट नॉट रियली, तुम्हें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए. सिट डाउन एंड व्हेन आई हैव टेकन ऑफ माई थिंग्स वी शैल गो इन टू द नेक्स्ट रूम एंड हैव टी एंड बी कोजी. बैठ जाओ और जब मैं अपनी चीज़ें उतार लूँगी, दैट मीन्स कोट और हैट एंड ग्लव्स वगैरह जो होते हैं, टू बी कंफर्टेबल. ओके, वी शैल गो इन टू द नेक्स्ट रूम एंड हैव टी एंड बी कोजी. हम दूसरे रूम में जाएंगे. कोजी मीन्स वार्म एंड कंफर्टेबल. ओके, वाई आर यू अफ्रेड, एंड जेंटली शी हाफ पुश्ड द थिन फिंगर into its deep cradle. Why are you, and gently half pushed, और उसने धीरे से उसको पुश किया. थिन फिगर कौन है यहाँ? दैट पुअर गर्ल. ओके, उसने उसको हल्के से पुश करते हुए, हाफ पुश करते हुए उस चेयर पर बिठा दिया. ओके, इनटू इट्स डीप क्रैडल. क्रैडल, ये तो क्रैडल का मतलब होता है टू होल्ड समवन जेंटली. ओके, तो उसने वहाँ जेंटली उसको कहाँ बैठा दिया? उस कंफर्टेबल चेयर पे. क्रैडल वैसे पालने को भी बोलते हैं, जो बच्चों के लिए यूज़ होता है, बट यहाँ पर आ रहा है कि उसने उस पुअर गर्ल को होल्ड करते हुए धीरे से उस चेयर पर हाफ पुश, यानी कि थोड़ा सा पीछे धकेलते हुए बैठा दिया. बट देयर वॉज नो आंसर, कोई आंसर नहीं दिया उसने. द गर्ल स्टेड जस्ट एज शी हैड बीन पुट, वो वैसे का वैसे ही बैठी रही जैसे उसको बैठाया गया. एंड हर हैंड्स बाय हर साइड एंड हर माउथ स्लाइटली ओपन, उसके हाथ जो थे उसकी साइड्स की तरफ थे. एंड हर माउथ स्लाइटली ओपन, एंड हर माउथ वॉज स्लाइटली ओपन because she was really surprised. To be quite sincere, she looked rather stupid. That way, that poor girl was looking quite stupid. वो बहुत ही मूर्ख नज़र आ रही थी. But Rosemary would not acknowledge it. पर Rosemary ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया. She leaned over her saying, "Won't you take off your hat?" उसने उससे पूछा, क्या तुम अपनी हैट नहीं उतारोगी? Your pretty hair is all wet. तुम्हारे जो बाल हैं, तुम्हारे खूबसूरत जो बाल हैं वो सारे गीले हो चुके हैं. एंड वन इज़ सो मच मोर कंफर्टेबल विदाउट अ हैट, इजंट वन. वो उसको कहती हैं कि हैट उतारने के बाद बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है. इजंट वन, कोई भी इंसान हैट को उतारने के बाद ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है. इज़ नॉट वन, क्या ऐसा नहीं है? There was a whisper that sounded like, "Very good, ma'am," and the crushed hat was taken off. बहुत ही फुसफुसाते हुए एक आवाज़ आती है, "Very good, ma'am," बहुत अच्छी बात है मैम. and the crushed hat was taken off, और वो जो उसकी बुरी सी हालत वाली टोपी थी, हैट जो थी, वो उतार देती है. ओके, एंड लेट मी हेल्प यू ऑफ विद योर कोट टू, क्या मैं तुम्हारा कोट उतारने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ? सेड रोजमेरी. द गर्ल स्टूड अप, बट शी हेल्ड ऑन टू द चेयर विद वन हैंड एंड लेट रोजमेरी पुल. लड़की जो है खड़ी हो जाती है. शी हेल्ड ऑन टू द चेयर विद वन हैंड, and she was holding the arm of the chair with one hand and let Rosemary pull, और वो रोजमेरी की हेल्प कर रही थी उसका कोट उतारने में. It was quite an effort, उसे बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा था. The other scarcely helped her at all, क्योंकि जो गर्ल थी वो बिल्कुल भी मूव ही नहीं कर पा रही थी. So she didn't help her. She seemed to be staggered like a child, that if people wanted helping they must respond a little, just a little, otherwise it became very difficult indeed. वो बहुत ही she seemed to stagger like a child, वो ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे की तरह लड़खड़ा रही हो, और बच्चों को जिस तरह ज़बरदस्ती कोई चीज़ करवाई जाती है. So she seemed to stagger like a child, और that if people wanted helping, अगर लोग सच में हेल्प चाहते हैं, दे मस्ट रेस्पॉन्ड अ लिटिल, उनको थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स भी देना चाहिए, जस्ट अ लिटिल, थोड़ा सा, अदरवाइज इट बिकम वेरी डिफिकल्ट इंडीड, वरना ये चीज़ बहुत ही मुश्किल हो जाती है. लाइक रोजमेरी ही उसको कोट उतारने में हेल्प कर रही थी, बट द गर्ल वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग. एंड वॉट वॉज शी टू डू विद द कोट नाउ, अब वो कोट का क्या करें? शी लेफ्ट इट ऑन द फ्लोर एंड द हैट टू, तो उसने वो कोट और हैट को भी ज़मीन पर रख दिया. शी वॉज जस्ट गोइंग टू टेक अ सिगरेट ऑफ द मेंटल पीस व्हेन द गर्ल सेड क्विकली,
but so lightly and strangely. I am very sorry, ma'am, but I am going to faint. I shall go off, ma'am, if I don't have something. अब रोज़मेरी जो है वो सिगरेट जलाने के लिए मेंटल पीस की तरफ जाती हैं व्हेन गर्ल सेड क्विकली, और अचानक वो लड़की बोल पड़ती हैं बट सो लाइटली, बहुत ही धीमे से, बट स्ट्रेंजली, आई एम वेरी सॉरी मैम, मुझे माफ़ कीजिए मैम, बट आई एम गोइंग टू फेंट, बट मैं बेहोश होने वाली हूँ। आई शैल गो ऑफ, मुझे जाना चाहिए मैम, इफ़ आई डोंट हैव समथिंग, अगर मुझे कुछ नहीं मिलता है तो। सो वी विल कंटिन्यू द स्टोरी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।